Hello students. Today I will discuss another set of questions on inverse trigonometry with you. So look at the first question. In this we have to prove that cot inverse of 7 plus cot inverse of 8 plus cot inverse of 18 is equal to cot inverse of 3, right? But we don't learn the formula, we don't know the formula of cot inverse of A plus cot inverse of B. So what we will do, we will convert this into tan and then apply the formula of tan inverse of A plus tan inverse of B, right? So we know that tan inverse of theta can be written as cot inverse of 1 by theta. इस cot के अंदर जो एंगल होगा उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. So this can be written as tan inverse of 1 by 7 plus tan inverse of 1 by 8 plus tan inverse of 1 by 18, right? So now we can apply the formula of tan inverse of A plus tan inverse of B here, which is actually tan inverse of A plus B upon 1 minus AB. This is the formula for tan inverse of A plus tan inverse of B, right? So we can apply the formula here, which is tan inverse of 1 by 7 plus 1 by 8 1 minus 1 by 7 into 1 by 8, and this term remain as it is. So we have what? Tan inverse of, if we take the LCM, 8 plus 7, which we have 15 upon 56, और नीचे वाला 56 cancel out हो जाएगा, and we have 8 7 the 56 minus 1 55 plus tan inverse of 1 by 18, right? 5 इसमें यहाँ पे 5 कैंसिल आउट कर देंगे तो आ जाएगा 3 by 11. Now apply the same formula, this one here. So we have tan inverse of 3 by 11 plus 1 by 18 divided by 1 minus 3 by 11 into 1 by 18. So we have tan inverse of 18 3 the 54 plus 11 65 upon 18 into 11 come out to be 198. So 198 minus 3, right? So we have tan inverse of 65 upon 195, right? And we know that 65 3 the come out to be 5 3 the 15, 1 carry 195. So this is 1/3. So we have tan inverse of 1 by 3, and which can be written as cot inverse of 3. So this is your actual right hand side. तो यही हमें प्रूव करना था. ये cot inverse of 7 plus cot inverse of 8 plus cot inverse of 18 come out to be cot inverse of 3, right? Okay, now the next one, in this we have to find out the value of x. I am writing two questions here. On the left hand side we have the same term, sin inverse of 6 sin inverse of 6x plus sin inverse of 6 root 3x इक्वल टू या तो पाई बाय 2 पूछ सकते हैं या माइनस पाई बाय 2 पूछ सकते हैं. अप्रोच सेम रहेगी तो हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डायरेक्टली. सो फॉर दिस व्हाट वी विल डू, क्योंकि हमने फॉर्मूला तो कोई नहीं पढ़ा साइन इनवर्स ऑफ ए प्लस साइन इनवर्स ऑफ बी का एनसीईआरटी में, बट फॉर्मूला वी कैन क्रिएट, बट वी विल अवॉइड दैट फॉर्मूला इन सीबीएसई. सो व्हाट विल वी डू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम trying to remove this inverse. How? So for that I will let 6x equal to sin a and 6 root 3x equal to sin b, ताकि यहाँ पे इन्वर्स हट जाए. तो हमारे पास बन जाएगा एक क्वेश्चन, साइन इनवर्स ऑफ साइन ए प्लस साइन इनवर्स ऑफ साइन बी इक्वल टू माइनस पाई बाय 2. साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा अगर एंगल कंपेयर करेंगे तो ए प्लस बी इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 हो गया, राइट? अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक एंगल को उधर ले जाऊँगा ताकि बैलेंस हो जाएगी. यहाँ पे दो वेरिएबल्स हो जाएंगे और यहाँ पे से कोई भी वेरिएबल नहीं है तो इसको एक टर्म किसी को टर्म को उधर ले जाते हैं ताकि वेरिएबल बैलेंस हो सके. मीन्स एक वेरिएबल लेफ्ट साइड पे, एक वेरिएबल राइट साइड पे, तो उससे कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाएगी, राइट? अब बिकॉज इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ साइन, सो जस्ट टेक साइन बोथ द साइड. तो साइन ए इक्वल टू साइन ऑफ, वी कैन टेक माइनस कॉमन, पाई बाय 2 प्लस बी, right? And sin minus theta is minus sin theta. Pi by 2 पे कॉम्प्लीमेंट चेंज होगा तो इट बिकम cos थीटा, और cos b को लिख सकते हैं हम अंडर रूट माइनस यही था अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है. तो कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दिया हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा आ जाएगा आपका अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट? So it become minus under root 1 minus sin square b, और sin b क्या है हमारा 6 root 3x. तो 6 root 3x को स्क्वायर करेंगे
and here we have sin. Sin क्या था आपका 6x. In order to remove the square root, the squaring both the side, so we have 36x square minus square हट जाएगा because minus x whole square is actually x square. ये बन जाएगा 1 minus 6 root 3 x whole square. 6 square is 36, root 3 square is 3. 36 into 3 108. इस टर्म को इधर ले आएंगे तो 144 x square equal to 1, x square equal to 144, 1 by 144 which is actually 1 by 12 whole square. तो x की दो वैल्यूज आ गई आपके पास प्लस माइनस 1 by 12, राइट. बट इफ यू ऑब्जर्व दैट वी हैव ऑन द राइट साइड माइनस टर्म हियर, तो प्लस वाला वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा. करके देख लेते हैं एक बार. जब x की वैल्यू 1 by 12 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 6 by 12 विच इज एक्चुअली 1 by 2 प्लस साइन इनवर्स 6 root 3 by 12, so which is root 3 by 2. This is your pi by 6 and this is your pi by 3. बट राइट ये हमारा आ गया pi by 2, बट राइट साइड पर माइनस pi by 2 दिया हुआ है तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे. और जब हम x की वैल्यू माइनस 1 by 12 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा साइन वर्स ऑफ माइनस 1 by 12 माइनस 1 by 2 साइन वर्स ऑफ माइनस रूट 3 by 2. माइनस कॉमन हो जाएगा दोनों से, राइट. उस केस में हमारे पास आ जाएगा पाई बाय 6, आंसर आएगा पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 विच इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2. अब ये राइट साइड के इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू माइनस 1 by 12 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, गिवन इक्वेशन. बट अगर राइट साइड पे यहाँ पे पाई बाय 2 होता है इनिशियली क्वेश्चन में, सॉल्व यही करते तो उस केस में प्लस वाला हमारा आंसर होता है और माइनस वाले का रिजेक्ट कर देते हैं. मीन्स दोनों सॉल्यूशन सेम है. तो अप्रोच क्या रहेगी, सबसे पहले हमने इन्वर्स हटाना और इसको सिंप्लीफाई करना है, राइट. थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. Number 3 is a bit tricky one and lengthy one also. In this you have to learn the formula of sin A and cos A in terms of tan, right? So you know the formula sin 2 theta का formula है, तो उसी से हम डराइव करते हैं. sin 2 theta होता था आपका 2 tan theta अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो उसी से मैंने एंगल हाफ कर दिया. तो sin थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा आपका 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2. ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए बिफोर कमिंग टू दिस क्वेश्चन. और cos थीटा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. तो उसी में हम अगर एंगल को हाफ कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2. तो वी नो, शुड नो, और वी कैन से वी मस्ट नो दिस फॉर्मूलाज. नाउ इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो लेंथ ही रहेगा क्वेश्चन ये. सो ऑन द लेफ्ट साइड वी हैव 2 tan इनवर्स ऑफ x, इसको हम x मान लेते हैं, राइट. ये पूरा एंगल x है. तो 2 टाइम्स x का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ. 2 tan इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला होता है आपके पास tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. वैसे और भी फॉर्मूले होते हैं 2 tan इनवर्स x के, बट हमें ये ध्यान रखना है क्योंकि राइट साइड पे tan की फॉर्म में आंसर आ रहा है, तो इसमें 2 tan इनवर्स x का वही फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें राइट साइड पे tan आए. सो वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला. तो ये टर्म बन जाएगी tan इनवर्स ऑफ 2x मीन्स 2 टाइम्स दिस होल टर्म tan अल्फा बाई 2 इंटू tan पाई बाई 4 माइनस बीटा बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा. तो tan पाई बाई 4 माइनस बीटा बाई 2 वाली टर्म का स्क्वायर, राइट. अब इसको सिंप्लीफाई करने के टाइम क्या करते हैं हम ना, tan पाई बाई 4 माइनस बीटा बाई 2 अलग से सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा आपका tan a माइनस बी का विच इज़ tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b. tan 45 इज 1, तो ये फॉर्म आ जाएगी 1 माइनस tan बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan बीटा बाई 2. दिस इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट, tan पाई बाई 4 माइनस बीटा बाई 2. तो हम ये रिजल्ट यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे. तो जब ये रिजल्ट यहाँ यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू tan अल्फा बाई 2 इंटू दिस होल टर्म 1 माइनस tan बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan बीटा बाई 2. ये तो हो गया आपका सिर्फ न्यूमरेटर में. डिनोमिनेटर में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस tan बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर. एलसीएम ले लेते हैं नीचे. तो 1 प्लस tan बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर यहाँ आएगा और एक टर्म ऊपर चले जाएगी तो ये बन जाएगा 2 tan अल्फा बाई 2
1 माइनस टेन बीटा बाई टू, और क्योंकि एलसीएम लेने में स्क्वायर ऊपर जाएगा तो एक टर्म इसे कैंसिल आउट हो जाएगी और एक टर्म यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, और डिनोमिनेटर भी यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1 प्लस टेन बीटा बाई टू का होल स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू इंटू 1 माइनस टेन बीटा बाई टू का होल स्क्वायर, राइट। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो वी हैव 2 tan अल्फ़ा बाई टू एंड दिस इज a माइनस बी एंड a प्लस बी, तो इट कम आउट टू बी 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई टू, राइट। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ से आ जाएगा आपके पास टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई टू का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर खोलेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 tan बीटा बाई टू, राइट। अब इसको फैक्टराइजेशन कर देंगे, इस तरह से हम देखेंगे, अगर ध्यान से देखिए तो हम देख रहे हैं कि ना यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई टू कॉमन आ सकता है इन दो टर्म्स में से, राइट। तो इसको हम रीअरेंज कर देते हैं, tan इनवर्स ऑफ 2 tan अल्फ़ा बाई टू 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई टू, रीअरेंज करेंगे, इन दोनों में से 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई टू कॉमन ले लेते हैं, तो यह बचेगा 1 और यहाँ बचेगा माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू, राइट। सिमिलरली यहाँ पे क्या करते हैं, इधर बची टर्म में से 2 tan बीटा बाई टू कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बच जाएगा आपका 1 एंड माइनस माइनस प्लस, तो टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू ये बच जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, बिकॉज फॉर्मूला की शेप लेनी है, अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हर टर्म को डिवाइड कर देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू से और 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई टू से, ऊपर और नीचे दोनों, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 2 tan अल्फ़ा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू, इस फॉर्मूले की अकॉर्डिंग साइन अल्फ़ा 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई टू, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कॉस बीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे जब आप इन दोनों टर्म से डिवाइड करोगे तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी इससे, तो बचेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू, विच इज़ बाय दिस फार्मूला कॉस अल्फ़ा प्लस यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी इस बार, तो बचेगा 2 tan बीटा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई टू, विच इज़ कम आउट टू बी साइन बीटा। तो यही आपको प्रूव करना था कि tan इनवर्स ऑफ साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू दिस, तो ये आपका रिजल्ट आ गया। दिस इज बिट ट्रिकी वन क्वेश्चन, जिसमें आपको सारे ट्रिगोमेट्री के फॉर्मूलेस लगाने थे, राइट। Come to the fourth question. This question can be done in two ways. Either by applying the property of tan square theta, which is 1 plus tan square theta equal to sec square theta. वहाँ से tan square theta की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट, ये वाली प्रॉपर्टी। तो tan square theta आ जाएगा आपका sec square theta माइनस 1, इससे क्या बेनिफिट मिलेगा हमें, एंगल और हमारा ये सेम हो जाएगा, राइट। ये हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, और यहाँ पे हम लगा सकते हैं cot square theta इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये दोनों वैल्यूज यहाँ लगा देते हैं। तो tan स्क्वायर थीटा को ले सकते हैं हम sec स्क्वायर थीटा, यानी ये पूरी टर्म माइनस 1, और here we can write this as cos स्क्वायर थीटा this whole term minus 1, right. So we know that sec square theta can be written as sec theta whole square, so this term will become sec inverse 2 whole square minus 1. Similarly here cosec inverse 3 whole square minus 1, तो sec inverse से कट जाएगा, तो we have 2 square minus 1, and here sec cosec से cosec कट जाएगा 3 square minus 1, तो 2 square is 4, 3 square is 9 minus 2, तो 13 minus 2 is come out to be 11। तो ये हमें प्रूव करना था। अगर आपको इस फॉर्मूले को नहीं करना तो अनदर मेथड क्या हो सकता है, यहाँ sec है तो we will convert this into tan, हाउ एट दिस एंगल विद थीटा, तो sec इनवर्स 2 अगर आपका थीटा है तो 2 इक्वल टू sec थीटा हो जाएगा, cos थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो sec थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, तो यहाँ से हम ये निकाल लेते हैं, तो x कम आउट टू बी √3,
सिमिलरली हेयर हम इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे कॉट में, इसको ले लेते हैं 5, कॉसेक इनवर्स 3 को ले लेते हैं 5, तो 3 हो जाएगा आपका कॉसेक 5। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 9, वाई का अमाउंट टू बी √8, तो √8 को ले सकते हैं हम 2√2, यहाँ पे 2√2 हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में हम करेंगे tan स्क्वायर, सेकेंड इनवर्स को 2 पर लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ, tan होता है आपका परपेंडिकुलर बाय बेस, तो x/1 यानी √3, और cot स्क्वायर थीटा, कॉसेक, यहाँ से कॉसेक की टर्म थी, इसको हम कॉट में कन्वर्ट करेंगे, तो कॉट को ले सकते हैं y/1, y इसका आपका 2√2 है, कॉट इनवर्स 2√2, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स √3 का होल स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स 2√2 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 2√2 का स्क्वायर यानी 4 × 2, तो 8 + 3 11। So in both the cases we have the same answer, so you can go in any form, any method you can go, right? Thank you.